भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत को एक नई दृष्टि से पेश करने की पहल अब डिजिटल स्वरूप में साकार हो गई है। तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज ने बीटा वर्जन को लॉन्च करते हुए भारतीय अध्ययन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वेबसाइट www.tuliresearchcenter.org के संस्थापक नेविल तुली और उनकी टीम द्वारा 3 दशकों में एकत्रित शोध, दुर्लभ चित्रों, दस्तावेजों और अन्य सामग्री का समग्र रूप है। इस प्लेटफॉर्म में 16 अंतर विषयक श्रेणियों में समाहित सामग्री भारतीय सिनेमा, ललित कला, वास्तुकला, साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास, पशु कल्याण और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है। TRIS की इस पहल का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को सभी के लिए निःशुल्क और सरल बनाना, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक, शोधकर्ता या आमजन। नेविल तुली कहते हैं, भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक ऊर्जा तब सबकी पहुंच होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म उसी दिशा में एक प्रयास है। बता दें कि दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के विजुअल आर्ट्स गैलरी में आयोजित प्रदर्शनी में TRIS के इस प्रयास की झलक देखने को मिल रही है। सिनेमा को शैक्षणिक संसाधन के रूप में पेश करना, शोले, दीवार, पाकीज़ा जैसी फिल्मों की दुर्लभ पोस्टर, स्लाइड्स और फैन मेल के माध्यम से भारतीय सिनेमा की विरासत को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। ये सर्च इंजन जो है, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रेट सर्च इंजन ऑन द विजुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज बेसिस ऑफ इंडिया फॉर द आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। 30 सालों से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है उनमें नई दिशा लाया जाए, नया जोश लाया जाए, greater archival, intellectual energy, aesthetic energy, and a sense of placing knowledge in a much more fully accessible, free manner so that our janta and the scholarly academic world both have access to the finest understanding of who we have been over the last 250 years. Sir, 250 साल का नॉलेज है और 30 इयर्स का रिसर्च है और आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है इसमें, जिसमें आप इंडिया को सिनेमा के थ्रू स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? देखिए, सिनेमा ऐसी चीज़ कल्चरल डिसिप्लिन है. It has been a great form of entertainment. It has been a great form of art. It has been the source of glamour, celebrity, great excitement. But it has not played its full role as a great critical resource for education. Whatever subject you want to study, cinema has an important voice for that subject. Whether it's history, whether it's anthropology, whether it's political science, whether it's economics, the voice of cinema has given insights, ideas, imagery, which have to be incorporated into our systems of education. Because that will bring a new joy, it will open the youngsters' minds on many levels which earlier were closed, and it will allow the jugalbandi of the visual and the textual and the audio, unlike before, in creating knowledge. And that will bring a different energy to the respect and love for knowledge. आप हमको कुछ एग्जांपल दे सकते हैं on what are the kind of knowledge we can have, maybe सत्यजीत रे, maybe शतरंज के खिलाड़ी? We will get access to the whole cinema of the world. World cinema. We start with Indian cinema. We will also introduce Hollywood. We will then introduce Asian and Arab cinema, European cinema, Scandinavian, Russian. It will bring the whole world of cinema on one major platform to then interrelate with 15 other research categories. The arts, photography, the crafts, architecture, travel, economics of culture. It's that holistic understanding which is important. Cinema in itself does not give us the answer. It is cinema combined with all the other cultural disciplines where we will get a deeper understanding of knowledge and life. Sir, आपने अभी आर्ट के लिए भी you've done a very interesting thing कि आर्ट जब से इंडिया का ऑप्शन में शुरू हुआ तब से लेके आज तक का जितना सेल्स है और what kind of money has been in art, it's the first time it's been categorized. It's not just the money, it's the knowledge. The biggest problem facing the art world, prices can go up, but if the community has no knowledge,
if the collector is dependent on dealers and wheelers and they themselves don't know what they are doing, the quality of the art market is at one level. India's share of the global art market is the same today as it was 30 years ago. It hasn't increased because the knowledge of the people involved in art is still at a very basic level. Changing that knowledge is imperative, and therefore giving all of that freely available is pivotal. There's no choice in the matter. It has to be done if art is to find its place at the very pedestal of cultural thinking in India. एग्जीबिशन आपने देखी, आपको कैसी लगी? मेरा नाम है SMM औसजा और मैं दिल्ली रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट हूँ और ये रिसर्च सेंटर जैसे आपने गूगल देखा होगा, विकीपीडिया देखा होगा, ये सब नॉलेज बैंक है। ये इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज बैंक है जिसमें कि सिनेमा, आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स सब आपको मिलेगा और सबके विजुअल मिलेंगे। सिनेमा का बहुत बड़ा आर्काइव है इसमें, जो कि विजुअल आर्काइव है, जिसमें आप ऐसी फिल्मों के पोस्टर और फोटोग्राफ्स और लॉबी कार्ड देखेंगे जो आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलेंगे इंटरनेट पे भी, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल पाकीज़ा कब बनी, कैसे बनी, और उसके ऐसे विजुअल जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली शतरंज के खिलाड़ी, जैसे कि अभी आपने देखा, पूरा उसकी फ़िल्म की जर्नी, उसके ओरिजिनल स्टिल्स, उसके डायरेक्टर उनको डायरेक्ट कर रहे हैं और उसके ओरिजिनल पोस्टर, सारे विजुअल्स जितने हैं आपको सिनेमा के, और भी जितनी 16 फील्ड बताई हैं उनके विजुअल्स के साथ नॉलेज बैंक आया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे पाकीज़ा है, शोले है, श्री 420 है, आवारा है, जितनी भी क्लासिक्स हैं और जितनी भी फिल्में हैं उनकी डिटेल में स्टडी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके सारे विजुअल्स हैं। टेक्स्ट भी है, विजुअल भी है। आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको टेक्स्ट ही मिलेगा, विजुअल बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ सब कुछ है। तो सिनेमा का पूरा आर्काइव एक जगह आपको मिल रहा है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया स्कूल्स हैं, फिल्म स्कूल्स हैं, सबको नॉलेज मिलेगी सिनेमा की थ्रू तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़। सर ये कोलैब के साथ विजुअल्स हैं या आपके अपने विजुअल्स हैं? नो, ये आर्काइव पूरी बनी है पिछले 30 सालों में, तो ये हम सारे हमारे पास विजुअल हैं। जितने भी इसमें आप देख रहे हैं इसके ओरिजिनल्स हमारे पास हैं। अगर कहीं इसको यूज़ करने के लिए आपसे मांगती है या लोग आते हैं तो हम इसको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं? या ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, कोई कॉस्ट नहीं है। हम लोग सब जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब फ्री दे रहे हैं। उसका स्पेसिफिक कोई कमर्शियल यूज़ होगा उसके लिए आपको हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ओरिजिनल कॉपीराइट जिसके पास है फिर उसके पास आपको जाना पड़ेगा। फेस्टिवल्स के लिए भी आप इसको विजुअल्स को प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल, वी आर ओपन टू प्रोवाइड फॉर ऑल द नॉलेज बैंक्स एंड ऑल द एरियाज वेयर फिल्म्स आर, जहाँ पे फिल्मों का काम हो रहा है या फिल्मों का फेस्टिवल हो रहा है या कोई बुक लिखी जा रही है या कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, हम लोग सब जगह ये विजुअल देंगे। लेकिन वो विजुअल्स अगर वो लोग फ्री दे रहे हैं तो हम भी फ्री देंगे, अगर वो लोग कुछ चार्ज कर रहे हैं तो उनको कोई रॉयल्टी थोड़ा हमें भी देनी पड़ेगी।